السلام علیکم دوستو۔ سائر جنات نگری کے دو جنوں سائر اور کاراکا کی پر اسرار کہانی۔ ایک خیر کا پرتو تھا اور دوسرا شر کا مجسمہ۔ دوستو، کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملے۔ وہاں پر چند لڑکیاں موجود تھیں لیکن ان میں عابدہ نہیں تھی۔ لڑکیوں نے مجھے دیکھا تو جلدی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئیں۔ وہ سب جدید لباس میں ملبوس تھیں، سب کی سب ایک سے بڑھ کر خوبصورت اور جوان۔ کیا کوئی کام تھا؟ ایک لڑکی نے پوچھا۔ آپ کو آنے کی ضرورت نہیں تھی، آپ گھنٹی بجا دیتی تو میں آ جاتی۔ رامو کہاں ہے؟ میں نے جان بوجھ کر پوچھا، حالانکہ وہ مجھے بتا کر گیا تھا کہ وہ کسی ضروری کام کے تحت جا رہا ہے اور جلد واپس آ جائے گا۔ وہ کسی کام سے باہر گئے ہیں، اسی لڑکی نے جواب دیا۔ تو میں نے اسبات میں سر ہلایا۔ آپ کو کسی چیز کی؟ نہیں، میں نے اس کی بات کاٹی۔ اچھا، میں واپس چلتی ہوں۔ اتنا کہہ کر میں حال نما کمرے سے باہر نکل آیا۔ مجھے یہ فکر لاحق ہو گئی تھی کہ اگر عابدہ وہاں نہیں تھی تو پھر کاراکا نے اسے کہاں رکھا تھا۔ میری معلومات کے مطابق عابدہ تو اسی محال نما گھر میں تھی۔ میں نے کمرے میں واپس آتے ہی دروازہ بند کیا اور صوفے پر بیٹھ کر آنکھیں بند کر لیں اور اپنی طلسمی طاقتوں کی بدولت عابدہ کے بارے میں معلوم کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ تبھی میرے دماغ کے پردے پر عابدہ کا عکس ابھر آیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ ایک کمرے میں بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی اور اس کی حالت و گرگوں تھی۔ سر کے بال الجھے ہوئے، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پڑے ہوئے اور اس کی آنکھیں بند تھی، شاید وہ سو رہی تھی۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر مجھے ایک بار پھر اپنا دل کٹتا ہوا محسوس ہوا۔ ساتھ ہی کاراکا کے خلاف نفرت کی ایک لہر میرے وجود میں سرایت کر گئی اور میں غرا کر رہ گیا۔ پھر میں نے اس کے کمرے کا محل وقوع معلوم کیا تو مجھے پتہ چلا کہ وہ اس محل کے آخری کونے میں موجود ایک کمرے میں قید ہے۔ میں نے آنکھیں کھول دیں اور لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ مجھے میری طلسمی صلاحیتوں کی بدولت یہ بھی معلوم ہو گیا کہ کاراکا نے عابدہ کے ساتھ زبردستی نہیں کی تھی، وہ پاک دامن تھی۔ کاراکا اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن عابدہ کے مسلسل انکار کی بدولت وہ کامیاب نہیں ہوا تھا۔ میں چند لمحے کچھ سوچتا رہا اور پھر میں نے سب سے پہلے خود کو غیبی حالت میں کیا اور کمرے سے نکل کر اس کمرے کی طرف بڑھ گیا جدھر عابدہ قید تھی۔ حال کمرے کے سامنے سے گزرتے ہوئے میں نے دیکھا کہ وہی لڑکیاں صوفوں پر بیٹھی خوش گپیوں میں مشغول تھیں۔ مختلف راہداریوں سے ہوتا ہوا بالآخر میں اس کمرے کے دروازے کے سامنے پہنچ کر رک گیا جس کے اندر عابدہ موجود تھی۔ پہلے میں نے قرب و جوار میں دیکھا، پھر میں خود کو ظاہری حالت میں لے آیا اور اس کے بعد میں نے ہلکے سے انداز میں دروازے پر دستک دی۔ کچھ وقت گزرنے کے باوجود جب عابدہ نے دروازہ نہ کھولا تو میں نے ایک بار پھر دستک دے ڈالی۔ کون ہے؟ کچھ دیر کے بعد دوسری طرف سے عابدہ کی آواز سنائی دی۔ میں ہوں۔ میں کون؟ عابدہ نے دریافت کیا۔ اشومی۔ چونکہ میں ابھی تک اشومی کے روپ میں تھا اس لیے میری آواز بھی شومی کی آواز جیسی تھی۔ کون اشومی؟ عابدہ کے لہجے میں حیرت نمایاں تھی۔ تم دروازہ تو کھولو، پھر بتاتی ہوں، میں نے جواباً کہا۔ دوسری طرف چند لمحے خاموشی طاری رہی۔
फिर आबदा ने दरवाज़ा खोल दिया। उसे देखकर मेरा दिल फटने को हो गया। उसकी वही हालत थी जो मैंने चश्मे तसव्वुर में देखी थी। ये वो आबदा नहीं थी जो अपने घर में हंसी खुशी रहती थी। वो इस्तफहामिया नज़रों से मुझे देखती रही, फिर बोली, हाँ बोलो, शायद तुम कराका की नई कनीज़ हो। मैं उसकी कनीज़ नहीं हूँ, तो फिर कौन हो और मुझसे क्या चाहती हो? मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहती हूँ। मैंने कहा, किस सिलसिले में? कराका के सिलसिले में, मैंने हल्की आवाज़ में कहा। उसमें तुम्हारा ही फ़ायदा है। मैं जानता था कि अगर मैंने उसे ये बता दिया कि मैं अशोमी नहीं बल्कि सायर हूँ, तो खुशी के मारे उसके मुंह से चीख भी निकल सकती थी। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता था, इसलिए मैंने ये कहा था। ठीक है, अंदर आ जाओ, उसने मुझे रास्ता देते हुए कहा। तो मैं कमरे में दाखिल हो गया। मेरे अंदर दाखिल होते ही आबदा ने झट से दरवाज़ा बंद कर दिया। बैठो और बताओ तुमने क्या बात करनी है कराका के हवाले से, आबदा ने कहा। तो मैं सोफे पर बैठ गया। आबदा भी मुझसे कुछ फासले पर बैठ गई और इस्तफहामिया नज़रों से मेरी तरफ देखती और मेरे बोलने का इंतज़ार करती रही। क्या तुम सायर को जानती हो? मैंने कहा तो आबदा यूं उछल पड़ी जैसे उसके पैर पर बिच्छू ने डंक मार दिया हो और उसकी आंखें भी फैल गई हों। सायर? वो बोली तो उसके लहजे में तासुफ था। हाँ, मैंने ज़ेर लब मुस्कुराते हुए कहा। हाँ जानती हूँ, लेकिन वो बोलते बोलते यूं रुक गई जैसे चाबी वाले खिलौने की चाबी ख़त्म हो जाती है तो वो रुक जाता है। मैं शायर ही हूँ, मैंने इस बार अपनी असली आवाज़ में कहा। तो आबदा यूं उछल पड़ी जैसे हकीकतन उसके पैर पर बिच्छू ने डंक मार दिया हो और उसके चेहरे पर खुशी के तासुरात उभर आए और वो जज्बात में आकर मुझसे गले लग गई। लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि मैं अशोमी नहीं शायर हूँ, तो वो जल्दी से पीछे हट गई और उसके चेहरे पर खजालत भरे तासुरात उभर आए। तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे? चंद लम्हों के बाद उसने सरसराती आवाज़ में कहा। यहाँ तक कैसे पहुँचा हूँ, ये एक लंबी दास्तान है। मैंने तवील सांस लेते हुए कहा। जब फुर्सत मिलेगी तो तुम्हें बताऊंगा। वो काराका और तुम लड़की, ये सब कैसे हुआ? इस हवाले से मैंने उसे मुख्तसर तौर पर बता दिया तो वो तहसीन भरी नज़रों से मुझे देखने लगी। शायर, मुझे तुम्हारे यहाँ आने की बेहद खुशी है, वो मुसर्रत भरे लहजे में बोली। तुम मुझे यहाँ से कब निकाल कर ले जाओगे? चंद रोज़ इंतज़ार कर लो, मैंने संजीदा लहजे में कहा। मैं सिर्फ मौके की इंतज़ार में हूँ। जैसे ही मुझे मौका मिला तो जिन बाबा का दिया हुआ तावीज़ कराका के गले में डाल दूंगा और फिर जैसे ही वो आम जिनजात बन जाएगा तो मैं उसे मार डालूंगा और उसके बाद कोई जिनजात तुम्हें तंग करने की जुर्रत नहीं करेगा। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा, मैंने तशफ़ी अमीज़ लहजे में कहा। इसी तरह हमने कई बातें की और फिर मैं आबदा के कमरे से निकलकर अपने कमरे में आ गया। काराका अभी तक नहीं आया था। मैं उसके इंतज़ार में था, लेकिन 2 रोज़ गुजर गए और काराका ना आया तो मुझे तशवीश होने लगी। ये सोच भी दिमाग में उभरी कि कहीं उस बदबख्त को मेरी असलियत का पता ना चल गया हो। ऐसी सूरत में वो हमारे लिए मुश्किलात खड़ी कर सकता था। इन 2 रोज़ में मैं बाकायदगी से आबदा से मिलता रहा और उसे तसल्लियाँ देता रहा। वो मेरी यहाँ आमद पर बेहद खुश और पुरजोश थी। उसे खुश देखकर मुझे भी तसल्ली हुई थी। तीसरे रोज़ काराका की वापसी हुई और उसके साथ एक और लड़की थी जो बेहद खूबसूरत थी। वो शक्ल सूरत से इंडियन लगती थी क्योंकि वो साड़ी में मलबूस थी और उसकी पेशानी पर तिलक था। उसे देखकर मैं चौंके बगैर न रह सका।
मैंने काराका से पूछा, रामू ये कौन है? ये? उसने लड़की की तरफ देखा। इसका नाम राधिका है और ये तुम्हारी खिदमत करेगी। ओहो अच्छा। मैं उसके सामने मुतमिन अंदाज में सांस ली। राधिका, काराका लड़की से बोला, तुम अभी जाओ और जब भी ये तुम्हें बुलाए तो फौरन हाजिर हो जाना। ठीक है राम बाबू। इतना कहकर लड़की वहां से चली गई और मैं काराका की तरफ मतवज्जा हुआ। रामू तुम 3 दिन से कहाँ थे? मैंने लाड भरी लहजे में कहा। मैं तुम्हारी गैर मौजूदगी से बहुत परेशान और अफसुर्दा थी। अब मैं आ गया हूँ मेरी जान, काराका ने दिल रुबाई से कहा। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तुम्हारे साथ ही रहूंगा। आखिर में उसने मैंने खेज लहजे में कहा तो मैंने दिल ही दिल में उसे कोसा। ये तो अच्छी बात है। क्या तुमने खाना खा लिया? काराका ने इस्तफसार किया। नहीं। आओ फिर इकट्ठा खाते हैं। वो सर हिलाते हुए बोला, मुझे बेहद भूख लग रही है, मैं खाना लगवाती हूँ। इतना कहकर मैं कमरे से बाहर आ गया। हाल कमरे में पहुंचकर मैंने मौजूद लड़कियों से खाना लगाने का कहा तो वह असबात में सर हिलाती हुई उठ खड़ी हुई। थोड़ी देर के बाद मैं और काराका मेज़ पर बैठकर खाना खा रहे थे। इस दौरान हमारे दरमियान हल्की फुल्की बातें भी होती रहीं। जब हमने खाना खा लिया तो मैंने कहा, रामू अब तो तुमने कहीं नहीं जाना, मेरा दिल तुम्हारे बगैर नहीं लगता। मेरी बात पर काराका हंसा और मखमूर लहजे में बोला, नहीं अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, बेफिक्र रहो, बस अब हम शादी की तैयारियां करेंगे। ठीक है, मैंने शर्माने की अदाकारी करते हुए कहा। फिर वो उठकर अलमारी की तरफ बढ़ गया। चंद लम्हों के बाद वो वापस पलटा तो उसके हाथ में शराब की एक बोतल और 2 जाम थे। उसने जाम में शराब उंडेली और एक गिलास मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोला, लो, शादी की खुशी में पहले हम जश्न मनाते हैं। मैं उसकी मक्कारी और अयारी समझता था और मैं शराब नहीं पीना चाहता था, लेकिन मैंने उसके हाथ से जाम ले लिया। उसने भी अपना जाम उठाया और एक ही सांस में सारी शराब अपने हलक में उंडेल गया। उसने गिलास मेज पर रखा और बोतल उठाकर मजीद शराब उंडेलने लगा और फिर मेरी तरफ देखते हुए बोला, तुमने अभी तक शराब नहीं पी? मेरा दिल नहीं कर रहा, मैंने कहा। क्यों? वो इसलिए कि मैं कहते कहते खामोश हुआ। अगले ही लम्हे मैंने तेजी से उठते हुए सारी शराब उसके चेहरे पर फेंक दी। वो बौखला गया। शराब उसकी आंखों में गई थी और उसने आंखें बंद कर ली थी। साथ ही उसने मुझे गलीज गाली से नवाजा। इससे पहले कि वह संभलता, मैंने बरकी सूरत के साथ जेब से जिन बाबा का दिया हुआ तावीज़ निकाला और काराका की तरफ बढ़ा। आका बचो, आका बचो। दफतन कमरे में एक चीखती हुई आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ सुनते ही काराका बे-इख्तियार चौंका, मगर मैंने उसके संभलने से पहले ही उसके गले में तावीज़ पहना दिया। अगले ही लम्हे काराका के गिर्द धुएं का हिसार कायम हो गया। धुआं इतना कसीफ था कि काराका उसमें छुप गया और कुछ ही लम्हों के बाद जब धुआं गायब हुआ तो काराका फटी फटी आंखों से मुझे देखने लगा और फिर जब उसकी नज़र तावीज़ पर पड़ी तो वो यूं उछल पड़ा जैसे कि उसके पैरों पर बिच्छू ने डंक मार दिया हो। तावीज़ की बदौलत वो अपनी असली और बेहानक शक्ल सूरत में आ गया था। ओहो ये क्या है? ओहो, वो बौखलाकर बोला। मैं इस्तेहज़ाइया अंदाज में मुस्कुराया। ये तुम्हारी बर्बादी का तावीज़ है काराका। मैंने चूंकि असल आवाज़ में कहा था, इसलिए काराका मेरी आवाज़ सुनते ही एक बार फिर उछल पड़ा और उसकी आंखें शिद्दत हैरत से फैलती चली गईं। तथा तुम तो ससायर वो अशोमी अपने कबीले में ही मौजूद है
मैंने तंजिया लहजे में कहा। इतना कहने के बाद मैंने अपनी असली हालत में आने का तसव्वुर किया तो मैं यकदम अशोमी से असली हालत में आ गया। कराका की हालत दीदनी थी। वो यूं साख्त व जामद हो गया था जैसे बुत ऐस्तादा कर दिया गया हो, और उसकी वो हालत थी जैसे बदन में काटो तो लहू नहीं। शायर वह सरसराती आवाज में बोला। अगले ही लम्हे गुस्से से उसका चेहरा बिगड़ता चला गया। मैं तुम्हारी गर्दन तोड़ दूंगा शायर, तुमने मुझे आम जिन बना दिया है। इतना कहने के बाद वो मुझ पर झपटा। उसने मेरी गर्दन पकड़ने की कोशिश की थी, लेकिन मैं ना सिर्फ झुकाई दे गया बल्कि मैं सीधा होते ही उसके पेट में लात रसीद की तो वो उछलता हुआ पुश्त के बल फर्श पर जा गिरा। उसके हलक से चीख निकल गई। वो चंद लम्हे फर्श पर पड़ा रहा और फिर वो जल्दी से उठ खड़ा हुआ। गुस्से की शिद्दत से उसका चेहरा स्याह मसक हो गया, और मज़े की बात यह थी कि वो तावीज़ भी अपने गले से नहीं उतार सकता था। ऐसा करने की सूरत में उसके हाथ जल सकते थे। अब उसे शैतानी ताकतें हासिल करने के लिए शैतान का पैरोकार बनना पड़ेगा और कई साल शैतानी अमल करने होंगे, तब जाकर उसे उसकी खोई हुई शैतानी ताकतें मिल सकती थीं। शायर वो एक बार फिर चीखा और मेरी तरफ बढ़ा।